Hello everyone and welcome you all. We are watching currently the special session that we are recording for all the students who are going to appear in this June attempt of CMA examination, and everyone is keen to know about how to pass your CMA exam. So those who are expecting that there is some miracle which is going to happen in this session and you're going to clear your examination, you are into the myth. But yes, those who actually willing to pass an examination and want some hint or want some common mistakes which normally student does in an examination or as a part of preparation before an examination, which we learn out of our own experience. That is where this session is going to become very helpful to those students who actually has done an hard work during the tenure of their studying, and they are a bit confused about how to approach this examination, because this kind of competitive examination, which again one of the most toughest examination of the country, what should be your approach, what should be your methodology, how you should prepare for exam, what should be your schedule, what are the other points that we should take care. This is the common aspects that we are focusing on. So इसी को ध्यान में रखते हुए जो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है ना, वो आपको बताना है, live like a lion. Look at this genius Napoleon has quoted. A genius is the man who can do an average thing when everyone else around him is losing his mind. This is so appropriate sentence for a person appearing in an examination like CMA, CA, where the question paper itself has been drafted in a way that somewhere at some point in time, everyone is losing his mind and he's confused about what to do. अब क्या करें, ये समझ में नहीं आ रहा है. तो जरा समझो, जब लोग अपना ना माइंड लूज कर रहे हैं, वहां पे अगर आप एवरेज परफॉर्म भी कर रहे हो ना, so that is sign of your genius. That is what your approach should be. आपको उसी पे एग्जाम में जब ध्यान देते हो, एग्जाम के लिए जब तुम प्रिपेयर करते हो, तो यही तुम्हें ध्यान देना है कि जब भी तुम क्वेश्चन पेपर आपने खोला, आपने जैसे स्क्रीन पे, क्योंकि एग्जामिनेशन वुड बी एन ऑनलाइन, it's not 100% online, I'll say it's a kind of an hybrid of online as well as offline examination. पर आप जब भी क्वेश्चन पेपर देखते हो, क्वेश्चन पेपर देखते कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखे, या पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो वो पहला ही क्वेश्चन आपको ऐसा दिखा which is not boosting your confidence, जिसकी वजह से आप लो फील कर रहे हो कि फाइन ये पेपर तो अभी गया, चलो आज तो हम गए. तो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड. दिस कोड राइट 10 times a day. एक्चुअली मत लिखना, मैं सिर्फ आपको एज अ मेटाफर बोल रहा हूँ कि आप जब दुनिया जब पागल हो रही है तब तुम कॉन्सेंट्रेट करके एवरेज पे परफॉर्म करोगे ना, दैट मीन्स यू आर जीनियस. सो प्लीज कीप योर हैव अ फेथ. I don't know how much faith you are having in God, but please have 100% faith in the hard work that you have done in last few 6 months, 1 year, 4 months, 5 months, the day when you started for this examination. So have a faith in your hard work. So again, the burning issue, the next would be, what should be your ideal schedule? आपका ideal schedule क्या होना चाहिए एग्जाम के लिए? So this is an ideal schedule which I have prepared, which any person should be having. देखो, wake up early in the morning. It has an advantage. You have the whole day in your hand. That gives a confidence to you. And waking up early in the morning again is very good for your mental stability. And do not rush behind studying. Wake up at 5 o'clock. Take 1 hour to get fresh, do some exercise, and you will be feeling कि यार एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप बोल रहे हो या हेल्थ के लिए आपने ये सेशन रखा है. Please believe me, when you are doing some exercise or yoga, any activity which will circulate blood in the whole body, that actually gives a good blood to your mind, good quantity of blood to your mind, that actually make you fresh, rather than just waking up and sitting with a book. So after 10-15, you must have, everyone must have observed this, कि पहली 10-15 मिनट चलो एक बार टेंशन के मारे आप उठ गए, बुक लेके बैठ गए, लेकिन वो कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है. आधे घंटे से एक ही पेज खोल के बैठे हो, कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है. अब ये क्यों नहीं आ रहा है? यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रेन फंक्शंस.
your brain function on the basis of the circulation that is happening in your circulation of blood that is happening in your body, which is routed through mind. So sufficient amount of blood when reaches to your mind can perform at an optimum level. That does not happen when you are just waking up from your bed. You have to activate yourself. You have to start your system. So starting of your system, start with getting a fresh, do some 15 to 20 minutes of exercise or yoga, whatever comfortable you are with, and then sit for reading. So आप पहले जब सुबह लेके बैठते हो पढ़ना, तो पहला जो आपको पढ़ा है मेरे हिसाब से पर्सनली करना चाहिए, क्योंकि सुबह बहुत 6 बजे आप पढ़ने बैठ जाते हो, तो देयर विल बी पिन ड्रॉप साइलेंस. आपने अभी एक्सरसाइज किया था, तो ब्लड सर्कुलेशन इन योर बॉडी इन योर माइंड इज एट ऑप्टिमम लेवल. तो जब आप थियरी क्वेश्चन, जब हम बोलते हैं ना एवरीवन इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद रीडिंग ऑफ थियरी, तो आप जब थियरी क्वेश्चन उस टाइम पे करोगे, ये 2-2.5 घंटे आप जब थियरी क्वेश्चन के पीछे आप दोगे, तो वहां आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होगा. एंड दिस कंसंट्रेशन इज गोइंग टू हेल्पफुल टू यू व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम. तो रादर देन पुटिंग अ थियरी सब्जेक्ट एट सम पॉइंट जहां पे यू आर ऑलरेडी टायर्ड, you put, I request you to put it the first step for the day, post your little bit of workout. ये 2.5 घंटे इतने कंसंट्रेशन से पढ़ोगे. अगर आपने 15-20 मिनट एक्सरसाइज किया, बेसिकली आपको पसीना आ जाना चाहिए. 5-10 मिनट के बाद यू विल फील फ्रेश. फिर ये 2.5 घंटे तक थियरी शांति से बैठ के पढ़ो. और प्लीज अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, whenever you are reading, when you are doing a start, अब जब भी आज फॉर एग्जांपल मैं 5th चैप्टर पढ़ रहा हूँ किसी सब्जेक्ट का थियरी का, तो क्या होता है, द पहला थॉट विच माइंड गिव यू वुड बी कि कल जो तूने 4th चैप्टर पढ़ा था उसका तुझे कुछ याद है या नहीं. अब जब तुम याद करने की कोशिश करोगे तुम्हें याद नहीं आएगा. जब तुम्हें 100% कुछ याद नहीं आएगा, तुम वापिस से 5th को छोड़ के 4th के लिए वापिस से चले जाओगे. दिस इज नेवर एंडिंग स्टोरी. सो डू नॉट बिकम फूल with such kind of thoughts of your mind. Mind should function in the way in which you want it to function. Do not react to whatever thought comes in your mind. So what you need to do is, आपने अगर अंडरस्टैंड करके अच्छे से पढ़ाई की है, फिर वो याद आएगा या नहीं आएगा उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है. 100% याद आएगा. और ये सब चीजें इसलिए होती है क्यों? क्योंकि माइंड ना, अगेन as I told you, you need to understand how your brain functions. Your brain normally does not like to concentrate. Your brain does not like to put some stress on it. अब जब तुम कुछ नया चीज पढ़ोगे तो आपको ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा. आपको जब ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा तो माइंड को स्ट्रेस ज्यादा मिलेगा. अब दिमाग को ये अच्छी नहीं लगती चीजें, तो इसलिए वो क्या करेगा, जो तुमने कल ऑलरेडी कंसंट्रेट करके पढ़ा हुआ है, आज उसको वापस से पढ़ोगे तो माइंड को उतना स्ट्रेस नहीं लगेगा. तो माइंड डू नॉट लाइक टू कॉन्सेंट्रेट. सो वो क्या आपको थॉट देगा, आपने जो कल पढ़ा था वो आपको याद है या नहीं है, वो थॉट आपको देगा. और कुछ एक दो सिली क्वेश्चन आपके दिमाग ही रेस करेगा, दिमाग ही आंसर कर रहा है कि तुझे आंसर नहीं पता है, और वापस से तुम चले जाओगे वही चैप्टर में. एंड यू आर इनटू दिस विशियस सर्कल. तो जिनका ये सिलेबस खत्म नहीं होता ना, कि एग्जाम से पहले मेरा सिलेबस मुझे ये 2-3 बार रिवाइज करना था, मैं ये रिवाइज नहीं कर पाया, ये बेसिकली इस रीजन की वजह से होता है क्योंकि तुम वापस घूम के वहीं पे चले जाते हो. You don't understand your mind's this sort of silly negative ideas which it is raising to you. So again, आज जो करना है वो आज करना है, जो मैंने कल करना था वो कर लिया है, मैंने concentration से पढ़ा है. तो have a faith in yourself that आप जब उसको रिवाइज करोगे दूसरी बार तब वो 100% याद आएगा. फिर वापिस से कल का आज करोगे रिविजन में, तो कभी इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी. सो 2.5 घंटे अगर तुम 8:30 बजे तक ये थियरी पढ़ते हो, बिलीव मी, अगर तुमने ये कंसंट्रेशन से पढ़ा, थोड़ा मेडिटेशन वर्कआउट करके पढ़ा, तो जो कंसंट्रेशन और जो स्पीड रहती है पढ़ने की ना, आई हैव सीन ऑन माई सेल्फ कि ये जो स्पीड रहती है पढ़ने की, वो आप जरा याद करो डे बिफोर एग्जामिनेशन क्या स्पीड रहती है. जैसे जेरोक्स मशीन चल रहा है, ऐसे पेज हम घुमाते हैं, तो 2-3 दिन आपको थोड़ा और लगेगा, लेकिन उसके बाद जो कंसंट्रेशन डेवलप होता है ना धीरे 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 धीरे, तो वो फिर ना स्पीड वुड बी एट एन ऑप्टिमम लेवल, और आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये चीजों को कैसे पढ़ना है, इसको कैसे याद रखना है. योर माइंड विल टेल ऑटोमेटिकली टू यू कि फाइन दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट, क्योंकि उसको पता चल गया ये छोड़ने वाला नहीं है. देन 8:30 you can have a break. 8:30 to 9 o'clock you can have your breakfast. Get fresh. आधा घंटा is more than enough.
9 o'clock again you can sit for a practical questions because theory बहुत आपने 2.5 घंटे से पढ़ी हुई है. अब आप प्रैक्टिकल जहां सम सॉल्व करने हैं, कॉस्टिंग हो गया, अकाउंट हो गया, या जीएसटी अगर आपने थियरी पढ़ा था तो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना हो गया. बेसिकली ये 9 to 12 o'clock से 1 बजे तक आप लंच ले लो. आपको आधे घंटे लेटना है, कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा लेट लो. 1 बजे से लेके फिर शाम के 7 बजे तक सोने की बात मत करना, बिकॉज योर एग्जामिनेशन वुड बी इन एन आफ्टरनून. अगर आपकी दोपहर को सोने वाली आदत, जो कि गंदी आदत है, वो लग गई तो एग्जाम में वही टाइम पे आपको नींद आएगी. और जब नींद आती है तो हमें पता है कि वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली. सो डू नॉट हैव दिस हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट नून. एग्जाम में वो बहुत दिक्कत करती है. अगर वो आदत पड़ गई तो उसको छोड़ देना. तो दोपहर का जो पूरा सेशन है, जो 9 बजे से स्टार्ट होता है 12 बजे तक, 12 बजे आपने लंच लिया, 1 घंटे तक ब्रेक, लंच, जो आपको फ्री होना है, टीवी देखना है, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है. बेसिकली यू शुड बी आउट ऑफ योर स्टडीज. ब्रेक अगेन माय डियर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टडिंग. तो ये 9 से 12 पढ़ो, 12 बजे लंच लो, 1 बजे वापस प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके बैठो, क्योंकि खाना खाया है, नींद आने के चांसेस ज्यादा है. 3:30 तक वो पढ़ो, वापिस से चाय पी लो, 4 बजे फिर वापस थियरी सब्जेक्ट्स लेके बैठो, क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो माइंड इज नाउ फ्रेश. तो वापस से ये 4 से 7 में ना तुम थियरी आसानी से कर सकते हो. ट्राई करके देखना. ये जो इवनिंग का टाइम होता है ना, वो भी थियरी के लिए बहुत अच्छा होता है. उसके बाद 8:30 से 9, 7 बजे तुमने ब्रेक ले लिया, फिर अब डिनर लो. 8:30 बजे तक 1.5 घंटा कुछ नहीं करना है, आराम करो, कोई बात नहीं. 8:30 से 9:30 जितना भी एमसीक्यू का प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज नाउ यू नो दैट MCQs are going to become very crucial part for your examinations. So आप पास होंगे या नहीं होंगे, वो सारा मेजोरिटी जिसको स्ट्रगल होता है, जो 10-15 मार्क्स से फेल होते हैं एग्रीगेट में, या किसी सब्जेक्ट में 5-7 मार्क्स की वजह से फेल होते हैं. अब जरा सोचो, अगर आपका अच्छा कमांड, अच्छा ग्रिप है MCQ पे, आप अपने मॉड्यूल के MCQ ले लो. MCQ का वर्कबुक आता है, इंस्टीट्यूट का वर्कबुक है, जहाँ पे भी नंबर ऑफ MCQ दिए हुए हैं. हमने टेस्ट में बहुत सारे MCQ की प्रैक्टिस की है, जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं बहुत सारे MCQ भेजता रहता हूँ. जितने ज्यादा आप MCQ की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, उतने ज्यादा आपके पास होने के चांसेस है. और आपको पता है MCQ का वेटेज, तो एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके इंस्टीट्यूट के पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन के, RTP के, MCQ की बुक के, वर्कबुक के आपने MCQ ना किए हो. आप जो सब्जेक्ट लेके बैठना है वो सब्जेक्ट के MCQ आपको 8:30 से 9:30 आफ्टर डिनर यू आर सपोज टू डू दिस. आपको 1 घंटा रोज रात को MCQ का प्रैक्टिस करना ही करना है. फिर 9:30 से 10 बजे तक आपको एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्लान फॉर द नेक्स्ट डे. यू हैव टू लिटरली मेक अ शेड्यूल. जो मैंने टाइमलाइन बनाई है ना, वो टाइमलाइन का नेक्स्ट डे आप कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक कितने बजे खत्म होना चाहिए, वो नेक्स्ट डे का प्लान तुम्हारा लिखा हुआ होना चाहिए. मेरे दिमाग में है चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा. इट हैज टू बी रिटन ऑन अ पेपर. that paper has to be in front of you every day. So whenever you are starting your schedule at 6 o'clock, you should know कि आज अगर मुझे 6 बजे थियरी के ये 2 चैप्टर करने हैं, तो पहला चैप्टर मेरा 7:30 को खत्म हो जाना चाहिए. 7:30 से 8 बजे में दूसरा चैप्टर मेरा खत्म हो जाना चाहिए. इससे ना आपको प्रेशर रहेगा, टारगेट रहेगा, तो आपकी स्टडी का स्पीड बढ़ेगा. वो एवरी डे अकॉर्डिंग टू दिस टाइमलाइन योर शेड्यूल मस्ट बी रेडी विथ एवरीवन. तो ये होना ही चाहिए. अगर ये नहीं होता है तो ही दिन का शेड्यूल जो आपने बनाया वो शाम को खत्म नहीं होता है. क्यों? क्योंकि तुमने उसका टाइम फ्रेम पे उसको अलोकेट नहीं किया था ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक. पॉइंट बी रियलिस्टिक. जब आप टारगेट बनाते हो इतने घंटे में ये पढ़ाई होनी चाहिए, तो बी रियलिस्टिक. तो आप कुछ हाइपोथेटिकल टारगेट मत दो खुद को कि हाँ 1 घंटे में मैं PGBP पढ़ लूंगा. इनकम टैक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो 1 घंटे में मैं सारे एग्जाम्शन पढ़ लूंगा. इट इज नॉट गोना हैपन इन दैट वे. Though if it is your second or third revision, then it's fine. लेकिन अगर आप पहली बार रिवीजन कर रहे हो, पहले 1 महीने की स्टडी चल रही है ना, तो ये होने नहीं वाला है. तो आप प्लीज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दो, लॉजिकल टाइम दो, और वो टारगेट के साथ पढ़ो. डिपेंड करता है आपका कौन सा रिवीजन चल रहा है. तो दिस प्लान फॉर द नेक्स्ट डे, अर्ली अलोकेशन ऑफ द टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आप ये शेड्यूल के हिसाब से बनाते हो, एवरी डे बिलीव मी यू विल मीट योर शेड्यूल. And when you are meeting your schedule, it gives an
optimum level of confidence and the satisfaction to you, which again will help you for your better sleep. अब नींद कब नहीं आती है एग्जाम में, पता है? जब टारगेट हमारे मीट नहीं होते, जब टारगेट ही मीट होते हैं तो नींद नहीं आती, टेंशन होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये टारगेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करोगे ना तो नींद भी उससे अच्छी आएगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फाइन। Another few important things which I want you people to understand, जहाँ पे नॉर्मली हम गलती करते हैं। The first one is when you're preparing for exam or during the exam days, focus on what you are eating, avoid carbohydrate। अभी ये मेरा डाइटिंग का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली वो सारी चीजें जिससे कि बॉडी को डिफिकल्टी होती है जिसको डाइजेशन करने में। देखो, खाने के बाद नींद इसलिए आती है, जरा समझो आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। खाने के बाद नींद इसलिए आती है बिकॉज बॉडी नीड अ टाइम you to relax so that it can focus on your digestion. So rather than taking big meal at a time, you can split your meal into the small piece. Focus on the chocolate, which I used to do. Focus on if you are having a tea or coffee, take tea or coffee. Snacks लो, छोटे पीस में खाओ rather than having a lunch. वो बहुत बड़ा 5-7 रोटी खा ली, सब्जी खा ली, दाल भात खा ली, फिर ना इट्स नॉट गोना हेल्प यू। फिर आप कितना भी ट्राई करो, कॉन्सेंट्रेट करने का नहीं आएगा, बिकॉज बॉडी को एनर्जी चाहिए डाइजेशन के लिए, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा आपके दिमाग को। तो जो आपका फूड है वो तो कैलोरी होनी चाहिए, लेकिन इनटेक आप छोटे लो, जिसको कि आप स्प्लिट कर दो ड्यूरिंग द होल डे, खाते जाओ, पढ़ते जाओ, थोड़ा खाओ। तो ट्राई टू फोकस ऑन दोज थिंग्स। अनदर, whenever you are preparing for exam, though the knowledge is most important, ultimately knowledge is a criteria, but when you are preparing for an exam, it's a target oriented preparation. You need to understand the exam pattern, how the exam pattern has been drafted. देखो, बहुत बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन पेपर में आपकी जो पैटर्न थी, जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको बताया था सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वेटेज, वो वेटेज के हिसाब से नॉर्मली पेपर आता है। बहुत बार ऐसा भी होता है वो वेटेज भी डिस्टर्ब हो गए। लेकिन when you're preparing for examination, you have to keep in mind that there is some exam pattern which institute has given to us. Keep that exam pattern in your mind, and your preparation should be on the basis of what they are going to ask in your examination. So ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें पढ़ लो, आपने फिर MCQ की कोई प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर आंसर देने में कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करो, कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़ा एनालाइज करने का ट्राई करो, कितना लास्ट 2 अटेम्प्ट में हर एक चैप्टर में से आया था वो थोड़ा एनालाइज करने का ट्राई करो। सो वो आप जब करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा, ओके फाइन, दिस इज हाउ आई नीड टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम। ये सारी चीजें वो हैं जो मैं करता था, सो ये कहीं से मैंने ली हुई नहीं है। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट। आई बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो आई अंडरस्टूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज वेयर आई नीड टू फोकस, एंड दिस एक्चुअली हेल्प यू इन पासिंग योर एग्जामिनेशन। देखो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ स्ट्रेटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्ट्रेटेजी से वार नहीं करोगे, आप जरा सोच लो, यू आर इनटू द वॉर, इफ यू आर गोइंग विथ अ गन बट यू डोंट हैव अ स्ट्रेटेजी, द हाईएस्ट चांस दैट यू आर गोना गेट किल्ड योरसेल्फ। बट इफ यू आर हैविंग अ स्ट्रेटेजी, कब बाहर निकलना है, कितना बाहर निकलना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो द चांसेस ऑफ सर्वाइवल वुड बी क्वाइट अ बिट हाई। नेक्स्ट इज द टाइम मैनेजमेंट इन योर एग्जाम। अंडरस्टैंड, you have only 3 hours in your exam, so you need to understand नॉलेज का इंपॉर्टेंस तभी होता है जब वो किसी एक टाइम फ्रेम में आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओ। तो 3 घंटे में आपको 100 मार्क अटेंड करने हैं, क्वेश्चन पेपर माइट बी ऑफ 120 मार्क। तो आपको पता है कि अगर 3 घंटे में मुझे 100 मार्क का लिखना है तो एवरेज 1 घंटे में मेरा 33 से 35 मार्क्स का लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप फिर पहले ही एक क्वेश्चन में जो 10 मार्क का क्वेश्चन है उसमें अंदर 45 मिनट आपने स्पेंड कर दी, तो फिर क्या होगा कि फिर आप क्वेश्चन अटेंड कर पाए सिर्फ 60 मार्क के। अब 60 मार्क में से भी आपका कितना सही है कितना गलत है, द चांसेस ऑफ गेटिंग स्टक दैट 40-35 वुड बी क्वाइट अ बिट हाई। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको उतना ही इंपॉर्टेंट देना है किसी क्वेश्चन को जितना उसके मार्क्स हैं, और मार्क्स अगेन कोरिलेटेड विद द अवेलेबल टाइम ऑफ 3 hours। ये 3 घंटे में एग्जाम पेपर आपका खत्म होना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, स्टे कॉन्फिडेंट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, नॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर रीडिंग, दिस अगेन इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग योर एग्जाम पेपर इन एन एग्जाम सेंटर। होता क्या है, ये भी मैंने बहुत बार देखा हुआ है, दैट अगेन यूज्ड टू हैपन विद मी,
when you are the question paper is in front of you, maybe on your screen or maybe in a physical form, you are trying to solve some question where you got stuck because the question was a kind of question which is an out of the box, which you have not seen anywhere during your study or during your practice. So you got stuck there, and you got stuck, you're looking around, तो बाकी सारे लोग लिख रहे हैं, आप नहीं लिख रहे हो, तो इमीडिएट थॉट क्या आता है कि ये मुझे ही नहीं आता है। ऐसा नहीं, सारे लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे लोग दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको खुद पे भरोसा रखना है। क्वेश्चन पेपर देखो, दो थॉट जब आते हैं तो आप ध्यान से समझो कि पहला थॉट कौन सा था, दूसरा थॉट कौन सा था। अगेन नॉर्मली योर फर्स्ट थॉट इज गोना गिव यू द राइट आंसर, सेकंड थॉट इज अ डाउट। ये नॉर्मली होता है, फिर पता नहीं सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये मेरे साथ नॉर्मली होता है कि फर्स्ट थॉट इज गिविंग एक्चुअली अ राइट आंसर, इंस्टिंक्ट जो आपको बोलता है। जो सेकंड थॉट आता है ना, दैट इज नॉर्मली अ डाउट। तो आप देखो, क्वेश्चन एक बार पढ़ा समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये चैप्टर से। बहुत बार तो ये नहीं पता चलता ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, तो आप दूसरी बार पढ़ो तो पता चलेगा ये चैप्टर से। तीसरी बार क्वेश्चन पढ़ो तो पता चलेगा ओके फाइन, इसमें कहां से मैं एंटर हो सकता है। एंड व्हेन यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन, तब आपका कंसंट्रेशन ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। तब देयर शुड नॉट बी एनी डिस्ट्रैक्शन कि बाजू वाला क्या लिख रहा है, बाजू वाले ने कोई एडिशनल सप्लीमेंट्री ली या नहीं ली, किसी ने बुलाया, तुमने किसी के सामने देखा। जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में किसी क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो, तब तुम्हारा कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए। तब अगर तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है यू विल misinterpret the situation of the question, you will forget the last sentence to read which actually is the requirement of the question। मैंने बोला है ना, बहुत बार मैं क्लासरूम में बोलता हूँ कि आप देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मुझे चाइनीज नूडल्स चाहिए, और आप उसको दे रहे हो पंजाबी थाली। उसको जो चाहिए वो आपको उसको देना है। So you better focus on what they are actually asking in your exam, what actually they are expecting, what is the question which they are asking. Your answer should be in context with those questions which have been asked. The next is exam खत्म हुई, बाहर निकले, क्या क्वेश्चन में तुमने क्या आंसर लिखे थे, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन पेपर हैज बीन सबमिटेड, आंसर शीट हैव बीन सबमिटेड, तो देयर शुड नॉट बी इन डिस्कशन विद एनीवन। घर पे जाके दूसरे पेपर की भी प्रिपरेशन करनी है। सो इमीडिएटली पोस्ट एग्जामिनेशन गो टू योर होम, forget about what you have done because you can't do anything anymore. So now focus on the next paper. नेक्स्ट पेपर का प्रिपरेशन अप्रोच क्या होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट। पहला चैप्टर क्या स्टार्ट करोगे, दूसरा क्या स्टार्ट करोगे, कितने बजे आप स्टार्ट करोगे, कितने बजे तक खत्म होगा। तो सारे चैप्टर को हो वापस से वो टाइम फ्रेम पे, मैंने जो बोला था ना, वो टाइम फ्रेम पे एलोकेट करो। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास टाइम नहीं है सोचने का भी कि आपका पेपर कैसा गया था, बिकॉज नाउ यू नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर। तो वो गया था, वो चला गया, अभी आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हो, तो फोकस ऑन द नेक्स्ट विच इज इन योर हैंड। फाइन। MCQ versus descriptive, this again is very important. देखो, your exam would be so called online examination. So MCQ तो आप सीधा आंसर लिख दोगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें अगर मैं किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं, कॉस्टिंग अकाउंट की बात करूं, या जीएसटी के किसी क्वेश्चन पेपर की, या डायरेक्ट टैक्स के किसी क्वेश्चन पेपर की बात करूं, तो आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर पंच करने होंगे, लेकिन उसका वर्किंग करने के लिए आपको जो सप्लीमेंट्री दी जाती है, आपको पता है वो सप्लीमेंट्री भी आपको सबमिट करनी है। तो ये सप्लीमेंट्री को आप एज अ रफ बुक यूज मत करना, दिस इज माय सजेशन। यू कंसिडर इट एज your offline examination, you prepare your supplementary in the way you used to prepare in your all offline examination up till now, और उसी तरीके से फिर आपको जो फाइनल आंसर आया है, जो या फिर क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, वो आंसर सिर्फ आपको पंच करना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहां तक मुझे पता है वहां तक ये कॉम्पिटिटिव सारी जो एग्जाम है सीए या सीएमए की, वहां सब जगह पे आपका कितना क्वेश्चन सही है, कौन से स्टेज तक आपका आंसर सही था, मार्क्स आपको उस हिसाब से मिलते हैं। So your supplementary should be treated as a supplementary, not as a rough book, so that when the supplement is being submitted and sent to the person who is going to check it, he should understand, okay fine, what was the logic, what is an assumption on the basis of which you have solved this question, because हर एक क्वेश्चन में अलग अलग assumption से अलग अलग आंसर हो सकते हैं। And as far as my knowledge, every time institute is also considering all the possible and logical assumption one can take, which can lead to a different answer.
So if you are assuming different which is logical, so do not have fear in your mind कि अच्छा मेरा ये assumption था, उसका ये assumption था, अगर दोनों के assumption सही है तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि इंस्टीट्यूट ने भी जब आंसर शीट बनाई है जिसके बेस पे आपके आंसर चेक होंगे, उसमें दोनों assumption को कंसीडर करते हुए उन्होंने सजेस्ट आंसर दिए होंगे। जो फाइनल सजेस्ट आंसर हमारे पास आते हैं वो किसी एक assumption पे होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में चेक करने के लिए पेपर जाते हैं वहां पे अलग अलग assumption के हिसाब से सॉल्व किए हुए होते हैं आंसर। दिस इज एज फार एज माई नॉलेज। सो इसलिए have no issues with assumption, but it should be very clearly written in your supplementary. So this is for MCQ, तो आपको पता ही है सीधा select ही करना है। But when you are preparing for descriptive, again you need to understand your typing skill would be required in a theoretical subject जहाँ पे आपको आंसर टाइप करने हैं, so that again the practice would be required for it, so you need to take care of it. उसके बाद जो मैंने बोला ना supplementary non-annual examination is treated as a supplementary, not as a rough book. Fine. लास्ट वाला अप्रोच कौन सा है? विराट अप्रोच। ये क्या कौन सा अप्रोच है? विराट कोहली वाला। यस, सही समझ रहे हो। देखो विराट कोहली क्या करता है जब क्रिकेट खेलने आता है, किसी मैच में खेलने आता है, तब वो पहले बॉल से 6 मारने की कोशिश नहीं करता है। वो क्या करता है, पहले सेटल होता है, फिर सेटल होने के बाद ना वो रन रेट पे फोकस करता है। तो आपका भी एग्जाम में अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए कि पहले आप सेटल होंगे, पहले आप सोचोगे मैं कैसे 40 तक जितना हो सके उतना जल्दी पहुंच जाऊं, कौन से क्वेश्चन वो हैं जो कि इजी लग रहे हैं मुझे, जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं व्हिच कैन गिव कॉन्फिडेंस टू मी। तो पहले जितना हो सकते उतना 40 मार्क्स के लिए रीच करो, उसके बाद फिर जितने आते हैं या नहीं आते हैं सारे अटेंड करने हैं, उसके बाद तुम फ्रंट फुट पे आके खेल सकते हो। लेकिन पहले आपको ध्यान रखना है कि आई नीड टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स सो दैट आई कैन रीच टू 40, 50, 50 is your aggregate. Please keep this in your mind. 40 is not a passing criteria, 50 is a passing criteria. तो आप जितना हो सके उतना बाद में एग्रेसिव हो, पहले थोड़ा ध्यान दो प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको मार्क्स भी ग्रैब करने हैं, तो ये इस पे थोड़ा ध्यान देना। एंड इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, योर क्वेश्चन पेपर विल बी 120 मार्क, उसमें से आपको 100 लिखना है जिसमें से आपको 50 लाना है। तो ये 120 में से आपको 50 लाना है, तो डू नॉट गो विद दैट फियर इन योर माइंड कि यार ये कैसे होगा। आपके पास 120 मार्क का पेपर है जिससे आपको 50 मार्क लाना है, तो अगर आप 40 मार्क भी, उसमें से 35 to 40 मार्क्स के आपके एमसीक्यू रहेंगे, तो बाकी का जो पेपर है 70 मार्क्स जितना, उसमें से आपको 20 या 30 मार्क्स आने हैं अगर आपने एमसीक्यू की अच्छी प्रिपरेशन की है तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा प्लान करके एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करके प्रिपेयर करते हो ना, the chances are very less that you are not going to perform better in your examination. So these are the things along with your preparation you must keep in your mind. Then the last thing that I would like to tell you, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऊपर वाला सेंटेंस और नीचे वाला सेंटेंस दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है पहला? The biggest misconception people have is that they are the odd one out and everyone else is sorted. मतलब आप क्या होता है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम क्या होता है, एग्जाम के दिन जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो, किसी को फोन किया तेरा कितना खत्म हुआ, मेरा इतना खत्म हुआ, वो बोलेगा मेरा ये भी खत्म हो गया, मेरा वो भी खत्म हो गया, मेरा ये भी खत्म हो गया, अब तुम्हारा वो नहीं हुआ है, तो तुम्हें लगता है बाकी सबकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, सिर्फ मेरी ही प्रिपरेशन बाकी है, उन सबको क्लैरिटी है एग्जाम पेपर में क्या आएगा, सिर्फ तुम्हें नहीं पता एग्जाम पेपर में क्या आएगा। देखो ये सब गलत चीजें हैं, आपकी मेहनत पे, आपके प्लान पे ध्यान दो, आपके प्लान पे फोकस करो, आपके प्लान पे भरोसा रखो, ऑटोमेटिक थिंग्स वुड बी इजी। और कितना भी डिफिकल्ट पेपर क्यों ना हो, कितना भी आपको लो फील क्यों ना हो रहा, द सेकंड कोट इज फॉर यू, और ये होगा, हर एक के साथ होगा, ऐसा नहीं है कि एक दो स्टूडेंट के साथ होगा, एवरीवन एट एनी पॉइंट इन अ टाइम इन अ डे व्हेन यू फील कि यार नहीं हो पाएगा, और ऐसा भी कोई पल आएगा जहां पे लगता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। सो व्हेनेवर यू फील लो, रीड और रिमेंबर दिस सेकंड कोट दैट इट्स नेवर लेट अनलेस यू योरसेल्फ गिविंग इट अप। सो आपको डटे रहना है, आपको सिर्फ खड़े रहना है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो आप जब भी लो फील करते हो ना, तो प्लीज दिमाग को समझाओ भाई तू, मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से कर, रिजल्ट तुझे नहीं देना है, रिजल्ट इंस्टीट्यूट को देना है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू। So these are the certain things which I wanted to share with you. Please share your feedbacks with me that whether you like this session or not, and please take very good care of yourself and stay focused, stay connected, and please focus on your reading. Thanks a lot.
थैंक यू वेरी मच।